Hello, dear students. Very good afternoon, all of you. I'm Chartered Accountant Company Secretary Pawan Gaukar, and yes, chapter 1, 2, 3, 4, 5 में से हम लोग कितने chapters कर चुके हैं? We are done with nature and scope of business economics. We are done with demand and supply. We are done with theory of production and cost. We are done with business cycle. Today we gonna start with meanings and types of markets and meanings and types of market के अंदर we have 3 units. The very first unit is the same thing, meanings and types of market. The second one is determination of prices, and the third one is price output determination under different output forms. Okay, so guys, let's check them out one by one. Meanings and types of market में सबसे पहला, a market is a collection of buyers and sellers with a potential to trade. ठीक है, it's a collection of buyers and sellers with a potential to trade. अच्छा, ये जो मार्केट है ये फॉर्मल होना चाहिए, ये सुनो. मार्केट प्लेस फॉर्मल होनी चाहिए, ये सुनो. मार्केट प्लेस हमेशा फॉर्मल होनी चाहिए, एकदम ऐसा शोरूम वगैरह होना चाहिए. ये सुनो. नो, इट्स नॉट गना बी दिस वे. ठीक है, तो चलो. We have seen in chapter number 1 that people cannot have all they want because they need to pay price for the goods and services, and resources at their disposal are very scarce. हमने तो पहले ही पढ़ा है. Resources at their disposal are very less. We have come across some goods which are free or having zero prices. That is, we need to make any payment for them. For example, air, water, sunlight. These are called as free goods. हर चीज के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता है. Free goods are abundant in supply and does not have scarcity, and therefore need not obtain any cost. In contrast, economic goods are scarce in addition to the demand and have an opportunity cost. Unlike free goods, they are exchangeable. So, price. What is price? It signifies the money value of the goods. It signifies the money value of the goods. So guys, एक मिनट. तो हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज. What is your gender? Say both. Value in use or value in exchange? Value in use refers to the usefulness or utility. That is the attribute which anything may have to satisfy the human needs. That's utility. Economics में value in use का ज़्यादा importance नहीं है. Value in exchange का ज़्यादा important है. Value in exchange or economic value is measured by someone is willing to give up in other goods and services in order to obtain a good or service. यानी अगला बंदा आपके लिए क्या कर सकता है आपके इस गुड्स या सर्विस के बदले. दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू इन एक्सचेंज. सर सुनो ना, आप मुझे पढ़ा दो, हमारे क्लास में से किसको गिटार बजाना आता है? फालतू काम नहीं करते. गाना गाना आता है? गाना. डांस वाला कितने हमारे क्लास में? डांस. तो डांस सिखा देंगे आपको हम. ऐसे कितने लोग डांस सिखा देंगे आपको. वॉइस कुछ नहीं आ रहा, वॉइस को सिर्फ एक ही काम आता है, रहने दो. ठीक है. सो मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा देता हूं, आप मुझे सालसा सिखा दो. ज्यादा हो गया. सालसा वालसा नहीं आता हमको ना. गणपति डांस है तो हमारा सालसा. नो सालसा. साक्षी को सालसा आता है. तो अब मैं आपको इकोनॉमिक्स में आप सालसा. तो ये हो गया वैल्यू इन एक्सचेंज. सर लेकिन ऐसा नहीं होता, वो जमाना गया. अब हर चीज चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी. इन द मार्केट इकोनॉमी द अमाउंट ऑफ करेंसी, that is dollar rupees, is universally accepted measure of economic value because the number of units of money that a person is willing to pay for something tells how much of all the goods and services they are willing to give up for that item. ये जो है 2,500 रुपए का आता था एक गेम, लेकिन किसी भी 1990s या 2005 तक के किड को पूछोगे ना आप, 2010 तक के बच्चे को, क्योंकि 2010 के बाद ना ऐसे इतने अच्छे फोन्स आने लग गए कि गेम्स से आने लग गए फोन में, तो इसका क्रेज कम हो गया. तो 2010 तक के बच्चों को अगर आप पूछोगे तो इसकी कीमत कितनी थी तेरे लाइफ में, तो आज वो कम से कम 25,000 रुपये बताएगा इसकी कीमत. या फिर गर्ल्स तो अभी भी खेलती है डॉल से, बॉयज भी खेलते कुछ बट 500 रुपये की होती है एक बार्बी डॉल. लेकिन कुछ लड़कियां अपनी बार्बी डॉल 10th तक अभी तक होगी आपके पास, उसकी वैल्यू एकदम बहुत वैल्यू रहती. तो ये जो वैल्यू है 2000 एक बार्बी डॉल की,
या 25,000 एक वीडियो गेम की, ये कैसी वैल्यू है? बॉयज भी खेलते बारबी डॉल, क्या पता है हमको क्या खेलते बॉय? सेंटिमेंटल वैल्यू है ये। इकोनॉमिक्स में सेंटिमेंटल वैल्यू इंपॉर्टेंट है? सॉरी, इन इकोनॉमिक्स यू आर ओनली कंसर्न विद एक्सचेंज वैल्यू। सेंटिमेंटल वैल्यू तुम अपनी consideration such as sentimental value mean little in the market economy. Sentimental value is subjective and reflects an exaggerated judgment about the worth of the commodity. ठीक है? Exchange value is determined, जो लोग खो चुके हैं चैप्टर नंबर 4, एक्सचेंज वैल्यू इज डिटरमिन इन द, सुहास उस जोक से बाहर निकल बेटा, बहुत देर हो गया उस जोक को। एक्सचेंज वैल्यू इज डिटरमिन इन द मार्केट विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेक्स प्लेस। ठीक है, तो हमें मार्केट लगेगा, पहले तो हमें मार्केट लगेगा। अब मार्केट इज अ कलेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स विद द पोटेंशियल टू ट्रेड। We are waiting for you. The actual potential interaction of the buyers and sellers determine the price of the goods. तो guys हमेशा फॉर्मल होना चाहिए, yes or no? ऐसा होना चाहिए मार्केट एकदम प्रॉपर। सर बोरा डाल के बैठ जाते लोग रास्ते में, क्या बेचते हैं? अदरक लहसन। मार्केट नीड नॉट, अरे भाई मार्केट नीड नॉट बी फॉर्मल or held in a particular place. Second hand cars are often bought and sold through newspaper advertisement. Ultra 800 ml 45,000 ऐसा एक पेपर कटिंग आता है न्यूज में, तो इनफॉर्मली भी बेच देते हैं। सेकेंड हैंड गुड्स में बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय लिस्टिंग इट इन एन ऑनलाइन शॉप और प्लेसिंग अ कार्ड इन द लोकल शॉप विंडो। ये ऑनलाइन भी लिस्ट कर सकते क्या प्रोडक्ट? सर आजकल ये आ गया ना, मैटर ही खत्म हो गया, अब तो दुकान की भी जरूरत नहीं है। क्या कहते हो? अब तो दुकान की भी जरूरत नहीं है। तो बायर के लिए क्या चाहिए? बायर के लिए चाहिए हमें बायर्स और सेलर्स, सॉरी मार्केट के लिए चाहिए हमें बायर्स और सेलर्स। प्रोडक्ट चाहिए, सर्विस चाहिए, बार्गेनिंग फॉर अ प्राइस, बार्गेन करना चाहिए लोगों ने, ट्यूशन क्लास में नहीं करनी चाहिए। नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशंस एंड वन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस एट अ गिवन टाइम। ठीक है, नॉलेज होना चाहिए मार्केट कंडीशन के बारे में, अदरवाइज बार्गेन ही नहीं करेगा कोई। जैसे अब तुम यूएस चले गए, सीए बनने के बाद आपको वहाँ पे एडेलवाइस ने या फिर न्यूयॉर्क मेलन बैंक ने आपको जॉब ऑफर कर दी, बुलाया वॉशिंगटन डीसी, वहाँ पे तुम लोग मिनरल वाटर खरीद रहे, वो दे रहा है आपको $2.5 का। $2.5 तुम हम पहले तो गिनने लग जाते, 80 40 200 रुपये का 1 लीटर पानी। अब तुमको पता है कि हमारे यहाँ 20 में मिलता, वो भी ठंडा, ठीक है, 20 में मिलता, ठीक है, तो हम उसको 200 रुपये दे देंगे कि यूँ ही कुछ ना कुछ तो बोल के आएंगे हम उसको, यानी डिस्काउंट है, बोलेंगे ना। बार्गेनिंग जरूरी है, नॉलेज भी होना चाहिए मार्केट प्लेस, नहीं तो मार्केट कंडीशन का नॉलेज नहीं है ना, तो अनाप शनाप रेट पे बेच देते हैं। ठीक है, जैसे, ठीक है, किसी को बताना मत, रुको ये म्यूट कर रहा हूँ मैं, सॉरी गाइस। बड़ी नामी फॉर्म है, ठीक है, यानी पैन कार्ड जो निकलता है, एक फॉरेन कंपनी का पैन कार्ड अगर निकालना है अपने को इंडिया में तो निकलता है पैन फॉरेन कंपनी का, तो एक फॉरेन कंपनी का पैन कार्ड निकल जाता है 2-3 हज़ार रुपये में। तो एक बहुत नामी फर्म है, ऑडिट फर्म, जो ये पैन कार्ड फॉरेन कंपनी का निकलवा के देती है, प्रेजेंटेशन वगैरह देती है कि पैन क्या रहता, कैसा रहता, ये रहता, लाख रुपए लेते हैं पैन कार्ड निकालने के, प्लस जीएसटी अलग। उन लोग दे भी देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि पैसे कितने लगते हैं। तो यू हैव टू नो द मार्केट कंडीशन, ठीक है, या दैट्स दैट। Markets are generally classified into product markets or factor markets. Whoa. Product markets and factor markets. Raise your hands. Product market किसके काम का होता है? Raise your hands. Product market किसके काम का होता है? Raise your hands. Don't leak it. Product market किसके? Madam. Consumers. Product market. The answer is consumers. Or factor markets, producers. What are the various things available in factor markets, Sakshi? Raise your hands. Pressure डालो उस पे. Very nice. ये जो फैक्टर मार्केट लिखा है, इसमें क्या क्या मिलता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, गुड। जो प्रोड्यूसर्स के काम का है, ठीक है, रेज योर हैंड्स।
अगर फैक्टर मार्केट में चीज़ें महंगी हो गई, अगर फैक्टर मार्केट्स की चीज़ें महंगी हो गई, तो क्या इसका असर प्रोडक्ट मार्केट्स के प्रोडक्ट्स पे भी गिरेगा? क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ जाएगी और सेम सेलिंग प्राइस में बेचेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए धीरे से बढ़ जाएगी आपकी प्राइसेस. So guys, let's check it out. Classification of market on the basis of area, on the basis of time, on the basis of nature of transaction, on the basis of regulations, and on the basis of volume of business and type of competition. तो हमें मेजरली पढ़ना है type of competition. So on the basis of geographic area, what are those? Anyone? Yes, Ishika. Local. Perfect. तो अगर मैं सिर्फ कोई प्रोडक्ट सिर्फ पुणे में बेचता हूं तो इट इज लोकल. अगर मैं कोई प्रोडक्ट पूरे वेस्टर्न महाराष्ट्र में बेचता हूं तो रीजनल. अगर मैं प्रोडक्ट पूरे इंडिया में बेचता हूं नेशनल. यानी लोग कुरकुरे पूरे इंडिया में बेच देते तो नेशनल प्रोडक्ट है वो, नेशनल मार्केट को. कोका कोला इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड बेच देते हैं वो, दैट इज इंटरनेशनल मार्केट. क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ टाइम. नहीं, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग. वेरी लॉन्ग इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्युलर. तो जिसका प्रोडक्ट का टाइम शेल बहुत ही कम रहता है, जैसे दूध 5 दिन पहले का बेच सकते हैं, आज दही बन चुका उसका. वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. ठीक है, कुछ चीज़ें जो रहती है 15 दिन तक, शॉर्ट पीरियड. कुछ चीज़ें हाँ कोई टेंशन नहीं, इसकी 2 साल एक्सपायरी है, लॉन्ग पीरियड. और कुछ जो प्रोडक्ट्स है लॉन्ग, वेरी लॉन्ग लास्टिंग. ठीक है, वेरी लॉन्ग पीरियड और सेक्युलर पीरियड. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग. देन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस स्पॉट एंड 2 किलो शेंगदाना दो, 50 रुपए लो. इधर से शेंगदाना, इधर से पैसे, तभी के तभी, तुरंत से पहले. इसको कहते हैं स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट. ठीक है, और आज खरीदो. ठीक है, आज खरीदो और आपको इसका बेनिफिट 1 महीने बाद मिलेगा. रेज योर हैंड्स. डिफिकल्ट क्वेश्चन. कौन सा कंसेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं बीसीके के अंदर, स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजीज में, जहां पे मुझे लगता है कि अगर शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है तो मैं ये रेज योर हैंड्स. मुझे लगता है कि अगर शेयर का प्राइस बढ़ने वाला हो तो मैं ये खरीद के रख लूं. मुझे लगता है कि शेयर का प्राइस कम होने वाला है तो मैं ये खरीद के रख लूं, ताकि हमें मुझे आगे उसको एक्सरसाइज करने मिले. रेज योर हैंड्स. सीजी. निरंजन बोल. कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट. फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट को डिटेल में पढ़ोगे तुम लोग इंटर में और फाइनल में. ठीक है, रेज योर हैंड्स. कॉल ऑप्शन, व्हाट इज इट? रेज योर हैंड्स. कॉल ऑप्शन. आर्यन, व्हाट इज द राइट? व्हाट इज द राइट? कॉल ऑप्शन, व्हाट इज द राइट? कॉल ऑप्शन इज राइट टू बाय. पुट ऑप्शन इज राइट टू सेल. याद है ना पीएस? बस पीएस याद रखो, काम बन जाएगा तुम्हारा. रेज योर हैंड्स. मेरे पास है पुट ऑप्शन. मेरे पास है पुट ऑप्शन. पुट ऑप्शन इज राइट टू सेल. मुझे ये जो शेयर है 400 रुपये में बेचने का राइट है मेरे पास. ठीक है, मार्केट प्राइस है इसकी 360 रुपये. क्या मैं अपना प्राइस एक्सरसाइज करूंगा? क्या अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा? तो रेज योर हैंड्स. 400 रुपये क्या है? 400 रुपये क्या है? वेरी गुड निरंजन, वेरी गुड ईशा. 360 में मार्केट में मिल रहा है, 400 रुपये का ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं 400 रुपये में बेच दूंगा इसको. मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, तो ये 400 रुपये क्या है? गया 1 मार्क एमसीक्यू का. आयुष, कम ऑन बॉय. स्ट्राइक प्राइस इज द आंसर. रेज योर हैंड्स. सर वो पुट ऑप्शन 400 रुपये का है, लेकिन मार्केट में 600 रुपये का बिक रहा है, तो मैं अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा. रेज योर हैंड्स. व्हाट इज दिस फिनोमेना कॉल्ड? सबसे आखिर में पढ़ाया था मैंने ये. अपूजो ने पिछली बार क्लास पढ़ाई थी, मैंने 35 घंटे की क्लास पढ़ाई थी.
ये जो मैराथन का आज 9th डे है, कल 10th डे होगा, यानी ये तूफान का, ऐसे मैंने आपको हर दिन लगभग 2.5 घंटे पढ़ाया है, तो मैंने आपको 10 दिन में 25 घंटे पढ़ा दिया है, और दिस इज ऑलमोस्ट द सेम। गौरव बोल, बीसीके का नोट्स लाए कि भेज दिए? फाइनेंशियल ओपन बुक टेस्ट में भी ना आ पा रहा, समझ? इट्स कॉल्ड एज आउट ऑफ द मनी, इट इज कॉल्ड एज आउट ऑफ द मनी। पता है कैसा कुछ कंसेप्ट? नहीं पता? आउट ऑफ द मनी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद ऑन द बेस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेटेड मार्केट एंड अनरेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट का एग्जांपल दो, स्टॉक मार्केट। या अनरेगुलेटेड मार्केट का एग्जांपल, हाँ सब्जी, भिंडी, हाँ भिंडी, मंडी, ओ सॉरी। ओके, चलो ऑन द बेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। होलसेल में ट्रेडर्स के बीच में होता है, और रिटेल के अंदर अल्टीमेट कस्टमर, अल्टीमेट कंज्यूमर लेने की कोशिश करता है। एंड द लास्ट वन ऑन द बेस ऑफ कंपटीशन, परफेक्टली कंपीटिटिव मार्केट एंड इम्परफेक्टली कंपीटिटिव मार्केट। ओके, सो गाइस ये मेजर, यानी अब तक जो पढ़ा ना, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने अब तक जो पढ़ा इस चैप्टर में, इसमें से 1 या 2। तो अगर कल जाके अगर टाइम की कमी रही और अगर ऑप्शन में छोड़ना रहा अगर, तो ये वाला पार्ट छोड़ देना। 1 मिनट, आई डू नॉट एडवोकेट लीविंग एनीथिंग फॉर द एग्जाम, बट व्हेन पुश कम्स टू शोव, जब आपका इमरजेंसी पीरियड होता है और आप समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं क्या करूं, उस वक्त आप क्या करेंगे, ये जो अब तक का पैराग्राफ है इस पे 1 आध क्वेश्चन आता है। मेजर तो टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है, ठीक है? सो कौन सा मार्केट है? कौन सा मार्केट है? तो परफेक्ट कंपटीशन। टोमेटो भैया 20 रुपीज पर केज में बेच रहे हैं, लक्ष्मी मैडम 20 रुपीज, और ये भैया 20 रुपीज। अब इस टोमेटो की क्या कहा तो तुमने वर्ड, भिंडी की जगह मंडी। वेरी नाइस। टोमेटो मार्केट में अगर हम लोग को कोई बंदा गया अपना, तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा टोमेटो? 20 रुपीज पर केजी। वो ऐसा बोल पाएगा मेरे ज़्यादा लाल है, मेरा रेट 25, ऐसा नहीं बोल पाएगा वो, ठीक है? अबे यार तो क्या सोच रहे हो, परफेक्ट कंपटीशन है ये, यहाँ पे सबका कमोडिटी सेम, कप के रेट सेम। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी मोर और लेस यही होता है, शेयर्स की भी कीमत में मोर और लेस यही होता है। ओके, देन फॉलोड बाय प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, ठीक है? मोर और लेस क्या, कितना 10-15 रुपए का रेट का फर्क पड़ता होगा, अदरवाइज क्या ज्यादा फर्क है? दिस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। कोलगेट, ₹50 for 100 grams and talks about tooth strength, correct? इससे क्या करते कोलगेट से? क्या बोलो तुमने, क्या धोते हैं? ठीक है। पेप्सोडेंट की खास बात क्या रहती? जर्म्स, हाँ, फिनाइल जैसा काम करता है, तुम्हारे मुंह के और तुम्हारे बदन के कीड़े साफ करता है। 50 रुपीज का जर्मी चेक है। विको हर्बल और 70 रुपीज का महंगा है, और स्ट्रेंथन द गम्स, ठीक है? विशाल तुम सिंगल हो क्या बेटा? विशाल तुम सिंगल हो? वेरी नाइस, तुम ये यूज करो, प्यार मिलता बेटा इसमें से। 58 रुपीज का है, प्यार का प्रीमियम लग रहा है वहां पे 8 रुपए। और तुमको दांत की कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने लोगों को फर्क नहीं पड़ता दांत का क्या है, तब तो बस ऐसे ही बस नींद में तो रहता है हम लोग। जब कितने लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते दांत वात में कि मेरे दांत साफ, बस ऐसे ही गुल्ला करके भी आ जाएंगे हम तो, जिनको कोई लेना देना नहीं है ज्यादा दांत वात से, बबूल। ये लोग अपने दांत, तो तुम्हारे साथ दांत का क्या करेंगे इनको नहीं पता, बट पैसे बचा देंगे तुम्हारे। 35 रुपीज फॉर 100 ग्राम्स। हर प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द डे उससे क्या घसना है, लेकिन प्राइस अलग है, फीचर्स अलग है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन।
ठीक है, it differs in only one respect, namely there are many sellers offering differentiated products to many buyers. Indian Railways, khatam. It is a situation where the single seller producing for many buyers, its product is necessarily extremely differentiated since there are no competing sellers producing products which are close substitutes. तो substitutes ही नहीं है, ठीक है, तो that is monopoly. टेलीकॉम इंडस्ट्री कंपनीज राइट नाउ, ठीक है, हमारे पास टेलीकॉम इंडस्ट्री में वी हैव एयरटेल, जियो, वीआई एंड बीएसएनएल. फ्यू सेलर्स सेलिंग कंपीटिंग प्रोडक्ट्स टू मेनी बायर्स, दैट इज ओलिगोपोली. ठीक है, सो चलो थोड़ा अब आ जाते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो. इफ द फॉर्म ऑफ टूथपेस्ट इंडस्ट्री है, टूथपेस्ट में सबका मार्केट शेयर है, तो इट इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. चलो ठीक है, सो दैट वाज द बेस ऑफ दिस चैप्टर. अब टोटल रेवेन्यू फॉर्मूला बता दो. टोटल रेवेन्यू का प्राइस इनटू क्वांटिटी, करेक्ट है. फिर टीआर क्या है? टीआर क्या है? टोटल रेवेन्यू. ठीक है, पी क्या है? प्राइस. क्यू क्या है? परफेक्ट, परफेक्ट आंसर्स गाइस, बहुत बढ़िया. ठीक है, हाँ, टोटल रेवेन्यू का ग्राफ बनाओगे? जल्दी बनाओ. एक्स एक्सिस क्वांटिटी, वाई एक्सिस प्राइस. All right, so guys, we have drawn the graph for this, and the graph says that it is linear, कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा रेवेन्यू भी, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा रेवेन्यू भी बढ़ते चला जाएगा. सो इट विल बी लीनियर विच स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन. साक्षी, ये ओरिजिन से क्यों स्टार्ट होगा? ओरिजिन से क्यों स्टार्ट होगा ये ग्राफ? कॉस्ट तो है ही नहीं इस ग्राफ में, तो दिमाग लगाना साक्षी, घबरा क्यों जाती? नहीं, वो क्यों लगेगा तेरे को जब वो है ही नहीं? पढ़ना उसको. सर अगर आपने कुछ क्वांटिटी बेची ही नहीं तो रेवेन्यू क्या रहेगा? ठीक है, डांट दो मुझे. एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला, यस एनीवन? एवरेज रेवेन्यू, total revenue divided by, raise your hands, total revenue divided by quantity is also equal to, total revenue divided by quantity is also equal to, Niranjan, price, it is also equal to price. marginal revenue का फॉर्मूला ईशा बताएगी. वन माइनस एन नहीं, एन. परफेक्ट, ये आ गया. दूसरा एक और होता है फॉर्मूला इसका, चेंज इन द क्वांटिटी, चेंज इन टोटल रेवेन्यू द चेंज इन क्वांटिटी. और एक फॉर्मूला हमारा जो ईशा का फेवरेट है, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ nth कमोडिटी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ nth कमोडिटी माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1th कमोडिटी. तो बेसिकली ये ना बनाने में बहुत आसान है, ये ना बोलने में बहुत आसान है, बट जब अप्लाई करने की बारी आती है तो थोड़ा गड़बड़ कर देते हो तुम लोग, है राइट? तो थोड़ा इसको ध्यान से करना. ठीक है, तो गाइस अगर हम लोग ये डेटा देखें, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं टोटल रेवेन्यू का एवरेज रेवेन्यू को मार्जिनल रेवेन्यू से, तो जैसे जैसे हम लोग ज्यादा बेचते हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, क्या कहता है आपको ऑब्जर्वेशन? जैसे जैसे हम लोग ज्यादा बेचते हैं आपको ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? देखो यूनिट 1 से इसको थोड़ा ऐसा एनालाइज करो, 1 टू यूनिट 10 टोटल रेवेन्यू देखो क्या हो रहा है. हाँ, बढ़ता बढ़ता जा रहा है और एक पॉइंट के बाद क्यों? ऐसा क्यों सर? आप ज्यादा सप्लाई कर रहे हो, मार्केट को उतने सप्लाई की जरूरत नहीं. हाँ, गरज, सॉरी गरज नहीं है.
सो टोटल रेवेन्यू का ऐसा ग्राफ बनता है, बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, ठीक है। एक पॉइंट के बाद आपने जबरदस्ती बेचने की कोशिश कर रहे हो तो कम रेट में बेचना पड़ता है वो, फिर वो कम होते जाता है। इसी को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, इसी ग्राफ को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू से। तो गाइस अगर हम लोग ये देखेंगे तो एवरेज रेवेन्यू भी क्या कॉन्स्टेंटली एवरेज रेवेन्यू क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू भी कम होते जा रहा है। ज्यादा कौन गिरा हुआ है, एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू? मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा गिरा हुआ है, ठीक है। सो एवरेज रेवेन्यू गिरता है लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू उससे ज्यादा गिरा हुआ है। कौन सा नेगेटिव है? पक्का मार्जिनल रेवेन्यू इज नेगेटिव ऑल्सो। रेज हैंड। मार्जिनल रेवेन्यू जब जीरो होता है, मार्जिनल रेवेन्यू जब जीरो होता है तब टोटल रेवेन्यू का क्या सिचुएशन है? मार्जिनल रेवेन्यू जब जीरो होता है तो टोटल रेवेन्यू का क्या सिचुएशन है चैतन्य? टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट। और उस वक्त अगर आप एक्स्ट्रा यूनिट बेचते हो तो आपको उससे कोई फायदा नहीं मिलता। रेज हैंड्स। जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है तब टोटल रेवेन्यू का स्लोप कैसा है? जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है उस वक्त टोटल रेवेन्यू का स्लोप कैसा है मैडम? डिमिनिशिंग। तो देखिए, तू मेरे चेहरे की तरफ देख के आंसर दे रही है, वहां देख ईशा। कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट नहीं बोलते उसको, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्लोप की वैल्यू कितनी? पक्का बोलो, पक्का। So average revenue curve is panel B is sloping downwards depicting the inverse relation between price and quantity demanded. तो basically demand curve का concept आ गया यहाँ पे। MR curve lies below AR showing that MR declines more rapidly than, पहले ही बोला MR बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, याद रखना, ठीक है। पैनल ए पैनल बी ये है। टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस along with MR is positive and declines when MR is negative। जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होता है तो तब टोटल रेवेन्यू गिरने लग जाता है। Total revenue curve initially increases at a diminishing rate, but due to diminishing MR reaches maximum, then it falls. MR becomes zero, the total revenue is maximum, and the slope of TR is zero. Marginal revenue curve lies below AR curve, showing that the marginal revenue declines more rapidly than। तो guys एक ही चीज याद रखना प्लीज, मैं हाथ जोड़ की विनती है, पिछले चैप्टर में MC is U, marginal cost curve is U shape, और दूसरा MR ज्यादा गिरा हुआ है AR से, करेक्ट? हाँ, रेज योर हैंड्स। मेरा सवाल ये था, काफी लोग मेरे साथ गणित खेल रहे, जब MR जीरो है तो टोटल रेवेन्यू का स्लोप कैसा रहता? तो काफी लोग मुझे कह रहे ऐसा रहता, ये भी सही आंसर है। काफी लोग मुझे कह रहे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी सही है। मैं वैल्यू पूछ रहा हूं, तुम ज्ञान दे रहे। रेज योर हैंड्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप? द आंसर इज जीरो। द वैल्यू ऑफ स्लोप व्हेन MR इज जीरो, ठीक है, एट TR द वैल्यू ऑफ स्लोप इज जीरो। व्हेन MR becomes zero the total revenue is maximum and the slope of total revenue is zero। MCQ गोल्ड। ये तो ऐसा है कि इसको तो छोड़ना ही नहीं बिल्कुल। MCQ प्योर गोल्ड। डिमांड का वैसा है, करेक्ट है। एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स ऑफ परफेक्टली कंपेटिटिव फॉर्म। एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स ऑफ परफेक्टली कंपेटिटिव फॉर्म। का इस परफेक्टली कंपेटिटिव में क्या होता है? प्राइस सेम रहता। प्राइस सेम रहता है तो उसका मतलब प्राइस बदलता ही नहीं। प्राइस बदलता ही नहीं तो डिमांड कर्व ये बनेगा उसका, वे डिमांड कर्व, डिमांड इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, ठीक है। और इनके बीच का रिलेशनशिप उन्होंने बताया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इनटू E माइनस 1 अपॉन E। रेज हैंड। व्हाट इज E? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यूज क्या क्या होती है? 1 रहती है, वेरी नाइस। लेस देन 1, मोर देन 1, जीरो रहता क्या? जीरो। इन्फिनिटी रहता क्या? परफेक्ट। तो उन्होंने इसी का रिलेशन बताया, ठीक है। इफ the numerical value of elasticity is greater than 0 but less than 1, it is inelastic. If it is 1, it is unitelastic. It is greater than 1 but less than infinity, then it is elastic. तो ये तो हमको ऑलरेडी आता था। अब इंपॉर्टेंट चीज है ये,
बिहेवियरल प्रिंसिपल इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बिहेवियरल प्रिंसिपल्स। अगर हमने ये छोड़ दिए, एग्जाम देने मत जाना। अगर तुमने ये बिहेवियरल प्रिंसिपल अच्छे से नहीं पढ़े, अगले यूनिट मार्केट के पढ़ना भी मत, सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट है। प्रिंसिपल नंबर 1, अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर नॉट मेट। दो टाइप के कॉस्ट होते हैं, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तुम्हारे फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं हो रहे, समझ सकते। वेरिएबल कॉस्ट तो निकाल यार, क्या कहते हो? यार तुमको जो प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसे लग रहे हैं, मान लेते एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 10 रुपए लग रहे हैं और तुम उसको 7 रुपए में बेच रहे हो, येड़ा झाला का? यही बोलेंगे ना कोई। अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर नॉट मेट। इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस दैट अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस ओनली इफ इट विल डू बेटर बाय प्रोड्यूसिंग देन नॉट बाय प्रोड्यूसिंग। तो गाइस अगर आप ये 10 रुपए का बना के 7 रुपए बेच रहे हो, उससे अच्छा बना ही मत ना, मेहनत ही मत कर, सो जा घर पे जाके। इन्हें मेहनत करके लॉस ले रहा कोई पॉइंट है? The firm always has the option of not producing at all if the firm's total revenues are not enough to make even good the total variable cost. It is better for the firm to shut down. In other words, competitive firms should shut down if the prices is below EVC. Competitive firms should shut down if the price is below it. Shutting down इन्हें फैक्ट्री बेच के नक्की हो जाओ, ट्रू और फॉल्स? जरूरी नहीं है, टेम्पररी शटडाउन है। हो सकता है अभी फैक्टर्स की कॉस्ट बढ़ी हो मार्केट में, ऐसा हो सकता है, तो इसलिए टेम्पररी रहेगा ये शटडाउन। इट विल मिनिमाइज लॉस बिकॉज देन टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू द फिक्स्ड कॉस्ट एंड इट विल ऑपरेटिंग लॉस इक्वल टू द फिक्स्ड कॉस्ट। सो शटिंग डाउन इज टेम्पररी एंड डज नॉट नेसेसरली मीन गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। याद रखना, ये शटिंग डाउन टेम्पररी रहेगा। अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर नॉट मेट। याद रहेगा पक्का? गाइस ये ना इसका टैटू करवा लो तुम, प्रिंसिपल 1 यहां, a firm should not produce at all if its total variable, or principle 2 yahan, desirable position of business, desirable position of business। नहीं खाना खाते वक्त लोग खुश रहते हैं। Principle number 2, the firm will be making maximum profits by expanding its output to the level where marginal revenue is equal to marginal cost। कब तक बनाते जाना है? जब तक marginal revenue is equal to marginal cost। कब तक बनाते जाना है? जब तक marginal revenue is equal to marginal cost। Raise your hands। जब तक marginal revenue is equal to marginal cost, ऐसा क्यों बोला है? अगेन पूरा यूटिलाइज करो यार, स्टेज 1 पे आके रुको मत। कहां तक जाओ? स्टेज 2 तक जरूर जाओ। स्टेज 3 तक चले जाओ क्या? स्टेज 3 तक मत जाओ। सो गाइस, फर्म मैक्सिमम प्रोड्यूस तब तक बनाओ, द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स एंड मार्जिनल कॉस्ट स्लोप अपवर्ड्स। आपको तब तक बनाना है जब तक ये मार्जिनल कॉस्ट, कब तक बनाना है? कौन से पॉइंट तक बनाना है बताओ? पॉइंट बताओ। EFGHI कौन से पॉइंट तक बनाना है? आपको ई तक बनाना है। सर मार्जिनल कॉस्ट को मार्जिनल रेवेन्यू ई पे कैसे है? इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं। सर इससे ज्यादा बनाया मैंने तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगी और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएगी तो क्या लॉस कर रहे हो आप लोग, तो फिर लॉस हो जाएगा। ओके, टू कंक्लूड, द फर्म विल मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट एट द पॉइंट एट विच मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। सो दैट वाज चैप्टर 4 का first unit, that was chapter 4 ka first unit, that is meaning and types of market। Alright guys, we are calling it a day, no quiz today, ठीक है? This is Pawan Gaukar signing off, see you in the next video, till then take care of yourself, study well, bye bye। कल हम लोग unit 2 करेंगे और unit 3 करेंगे and then our तूफान will be over by tomorrow। Alright guys, thank you so much, this is Pawan Gaukar signing off, see you in the next video, till then take care of yourself, study well, bye bye guys।